Okay, good morning class. Today we are going to see decision making. Up till now what we have seen what do you mean by management, what are the different levels of management, what are the characteristics of management, what are the different functions of management. Then we have seen the different types of organizations. Then we have seen the different functions like delegation, decentralization, and now today we are going to see, we have seen the difference between management, difference between administration, and difference between organization. Now today we are going to see the decision making. So as we have seen all the management functions, we have understand that at each and every step we have to take some decisions. So there can be so many decisions in day-to-day working. There are some decisions maybe about the product, maybe about the production line, maybe about the process, maybe about the overall work culture, then the diversification of the business, and so many things. Daily we have to take thousands of decisions. That means it is said so daily you have to take decisions. You have to take some decisions periodically. You have to take some decisions in long term. So this is what we are going to see today: decision making. Now, how do we generally take a decision? Conclusion of a process by which one chooses between two or more available alternative courses of action फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अ गोल. मतलब आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस है, तो फिर आपको कौन सा लेना उसमें से, कौन सा चॉइस ऑफ प्रीफर करते हो, आप किस तरफ जाते हो. एक से ज़्यादा चॉइसेस है, उसमें से कोई तो भी एक चूज़ करना ताकि आपका जो डिफाइंड गोल है वो आप अचीव कर सको. सो दैट इज डिसीजन मेकिंग. It is an act of choice wherein a manager forms a conclusion about what must be done under a given situation. What happens ki basically there is some situation and there are various situations in businesses. So you have to take decisions in industries, institutes and everywhere. So it is a choice. You conclude with something. Again, it is an intellectual ability as it calls for both judgment and imagination. Now, how do you generally take decisions? We see a particular thing, we analyze, we judge and then we take a decisions. एज सच डिसीजन हमको हर जगह लेना पड़ता है. हम अगर गाड़ी चला रहे हो, सपोज वी आर ड्राइविंग एंड देन सडनली सम ट्रक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस और हमारे साइड से कार चल रही, तो हम इसको ओवरटेक करके निकल जाएंगे क्या, या फिर हमको ब्रेक लगाना है. तो हम ऐसे दिन भर 24 घंटे डिसीजंस लेते रहते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के डिसीजंस लेते हैं, येस नो लाइक दिस लाइक वाइज. सो जो बिजनेस में भी डिसीजंस होते हैं वो भी कुछ इस तरह के होते हैं. अब ये जो छोटे मोटे डिसीजंस है ये ऐसे परफेक्ट प्रोग्राम है कि हमको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता. जैसे सपोज आप ऐसे कहीं पे बैठे हो और सडनली आपके चेहरे की तरफ कुछ आया तो आप खटक से हाथ से उसको अड़ाओगे, राइट. सो ऐसे छोटे मोटे कई सारे डिसीजंस है जो आप अनप्रोग्राम्ड है, वो मतलब ऐसे प्रोग्राम दिमाग में बैठे आप कंटिन्यूसली उसको रहते हो. और बेसिकली डिसीजन लेना मतलब एक इंटेलेक्ट का भी वर्क है, बिकॉज देयर नीड सम जजमेंट एंड सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन. So decision is generally process where we choose between the different alternatives available. We come to a certain conclusion by analyzing something and that requires certain skills. So that is what decision making is. And it is required in each and every aspect. Plan करना है तो decision लेना है, organize करना है तो decision लेना है, control करना है तो भी decisions ही लेना है. Now there are few types of decisions जो generally classify होते हैं, that is programmed decisions and non-programmed decisions, major and minor decisions, routine and strategic decisions, organization and personal decisions, individual and group decisions, policy and operative decisions, and long-term departmental non-economic decisions. तो अब हम we'll see one by them what are they. तो इसमें कि basically जो first 5 है, these are very important ones. Like this, up to this individual and group decisions, rest policy and operative, and जो नेक्स्ट इकोनॉमिक वन वो इन्हीं में से एक होता है. तब हम देखते हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन. वी जनरली व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोग्राम. प्रोग्राम मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन किसी चीज़ का, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बनाए, ऐसा होगा फिर उसके बाद में ये होगा. जैसे सपोज हमको एक प्रोग्राम लेना है तो हमको क्या करना है कि सपोज वी हैव टू गो फॉर अ सर्टन सेमिनार. तो देन द गेस्ट विल अराइव, विल फेलिसिटेट द गेस्ट, देन विल इंट्रोड्यूस द गेस्ट, देन गेस्ट विल गिव द स्पीक, देन विल सब प्रोड्यूस द वोट ऑफ थैंक्स. तो ऐसा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है. तो प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं, दे आर मेड इन अकॉर्डेंस विद सम हैबिट, रूल और प्रोसीजर. मतलब कुछ तो भी स्पेसिफिक स्टेप्स बनी हुई हैं, उसके बेसिस पे हम लोग प्रोग्राम डिसीजंस लेते हैं. तो वो स्टेप्स क्या है देखते हैं. एग्जांपल्स, ऑर्डरिंग इन्वेंट्री आफ्टर इट फॉल्स बिलो पर्टिकुलर लेवल. जैसे आपकी इंडस्ट्री में इन्वेंट्री है, अब एक पर्टिकुलर लेवल के पीछे जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर करनी है. और कई जगह पे जो MIS यूज़ करते हैं, दैट इज़
there are certain softwares for inventory management and so on, or management of entire systems. So what happens when it goes beyond a particular limit, an automatically email is generated and it is sent to the particular बायर फ्रॉम विच यू जनरली बाय. उसको ऑटोमेटिकली, जिसको हम वेंडर बोलते हैं, वेंडर को मेल चला जाता है और वो ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं. प्रोवाइडिंग अदर डिपार्टमेंट्स द जॉब फॉर फर्दर प्रोसेसिंग लाइक फिनिशिंग, पैकेजिंग. जैसे आपका जॉब बन गया तो दूसरे डिपार्टमेंट्स में उसको भेजना ताकि उस पर आगे के ऑपरेशन जैसे पैकेजिंग वगैरह हो सके. तो ये सब क्या हो गए, दिस आर प्रोग्राम्ड डिसीजंस. नॉन प्रोग्राम मतलब क्या होगा, नॉन प्रोग्राम मतलब वो डिसीजन होगा, प्रोग्राम मीन्स दोज डिसीजंस जो बेसिकली प्लान नहीं, जैसे दैट डील विथ अनयूजुअल एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स. कि जैसे सपोज हम देखा, यूटिलाइजिंग द मैन पावर प्रॉपरली इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन. आपका एक प्रोडक्शन शुरू है और सडनली आपके लाइन में कुछ फेलियर होता है कि वो पूरी लाइन ही बंद होती है. लाइन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जनरली जहाँ पे एक के बाद एक ऐसे ऑपरेशंस डिसाइडेड है. अगर आप सपोज एग्जांपल लो, डोर ऑफ अ फोर व्हीलर, जैसे कार का दरवाजा देखा जाए तो उसमें एक फाइबर की बॉडी है, उसके बीच में रबर की केसिंग लगी, फिर उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, एक हैंडल लगा है, उसको ओपन करने के लिए वहाँ पे नट बोल्ट का फिनिश है. तो ये जो ऑपरेशन होते हैं कि पहले शीट मेटल से वो प्रेस होगा, मतलब एक शीट है जो पहले प्रेस होगी, फिर उसको इस साइड से प्रेस होगा, उस साइड से फिर वो शेप आएगा, फिर उस पर कलरिंग होगा, फिर उसके बाद में उसका स्क्रीमिंग होगा, हैंडल फिक्स होगा. तो जनरली क्या रहती, एक के बाद एक ऐसी मशीन्स लगी रहती और लाइन से वो मूव होते रहता. तो अगर वो लाइन सपोज फेल हो गई तो फिर क्या करोगे, तो दैट इज समथिंग अनप्रोग्राम्ड. ऐसा तो हमने अभी सोचा नहीं था. तो ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे कि वो मैन पावर को वहाँ पर कैसे यूटिलाइज करोगे. सो दैट कुड बी ए नॉन प्रोग्राम डिसीजन. अब सडनली सपोज कोई डिलीवरी आएगी कि आप एक काम कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए कुछ एक जो सपोज एक असेंबली के लिए कुछ एक पार्ट चाहिए, वो आपको इमीडिएट मैन्युफैक्चर करना है अर्जेंट बेसिस. तो फिर आपको आपका रेगुलर प्रोडक्शन रोक के उसके तरफ जाना पड़ेगा. तो ऐसे टाइप के डिसीजंस दे आर जनरली नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. मेजर डिसीजन एंड माइनर डिसीजन, जहाँ पे ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिस्क आ गया वो हो गया मेजर डिसीजन. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपको आपके पिताजी से 2000 रुपये मांगना है तो आपकी थोड़ी सी इंक्वायरी करेगी. 200 रुपये मांगना है तो और कम, 2 रुपये मांगोगे तो वो तो लगेगा क्या मांग रहा है. लेकिन आप उनसे 2 लाख रुपये मांगोगे तो व्हाट विल हैपन. सो ऐसा जहाँ पर ज़्यादा रिस्क आ गया, ज़्यादा पैसा आ गया, वहाँ पर जो डिसीजंस है वो बड़े अथॉरिटीज़ ही लेंगे, वो सोच समझ के बैठ के डिसाइड करके ही लेंगे. तो वैसे जो डिसीजंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज मेजर डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, परचेस ऑफ अ मशीन कॉस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज़. सादी मशीन आपको खरीदना है जो आपकी चलो एक 5000 की मशीन है जो आपको इंडस्ट्री के यूज़ के लिए चाहिए, आपने ले ली, दैट इज़ वेल एंड फाइन. लेकिन अगर आपको एक इफ़ यू हैव टू परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज़ 5 lakhs देन और यू हैव टू परचेज अ मशीन ऑफ 50 lakhs देन, तो जितना भी आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, फंड ज़्यादा रहेगा, तो वो हिसाब से जो डिसीजंस जो उतनी हायर अथॉरिटीज़ लेगी एंड दे विल थिंक ओवर इट. तो सच काइंड ऑफ डिसीजंस दे आर कॉल्ड एज माइनर डिसीजंस. अब सपोज इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर स्टेशनरी लगती है, सबके स्टेपलर की पेन्स खत्म हो गए, पेन खत्म हो गए, देन आपका फेविकॉल खत्म हो गया, देन देर आर होल्डिंग डिवाइसेस सम, वो कुछ खत्म हो गए, पेपर खत्म हो गया, स्क्रब्स पैड्स खत्म हो गए. तो ये सब जो आप वैसे ही परचेस कर सकते हो. तो ये दीज आर कॉल्ड एज माइनर डिसीजंस. दिस आर वेरी सिंपल वंस. ये सिंपल है बट इट इज़ वेरी important to understand the things. Then comes routine decision and strategic decision. रूटीन मतलब डे टू डे टाइप का, कि जब आपका जॉब का सपोज डिस्पैच हो रहा तो उसका लास्ट में डिस्पैच के पहले क्वालिटी चेक किया, वो हो गया आपका रूटीन डिसीजन. जब आपका रॉ मटेरियल आया तब अपन ने उसका क्वालिटी चेक किया, दैट इज ऑल्सो रूटीन डिसीजन. जॉब जब मैन्युफैक्चर हो गया तो उसके बाद में उसको सही प्लेस पे ले जाके रखा, दैट इज अ रूटीन डिसीजन, अ रूटीन वर्क. अब क्या होगा, कुछ ऐसा करना पड़ेंगे. जैसे हमने सोचा कि सपोज कि हमको एक जो प्राइस थोड़ी सी कम करना है प्रोडक्ट की ताकि उसके सेल में थोड़ा सा फर्क आ जाए, या फिर हमको प्लांट का शिफ्टिंग करना है, या हमको प्रोडक्ट शिफ्ट करना है, या डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस को. तो ये डिसीजंस कैसे, दीज आर द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. मतलब ये डिसीजंस के बेस हमारी स्ट्रैटेजी बनती है एंड ऑन दैट स्ट्रैटेजी द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क. तो ये हो गए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. So again, this kind of decisions they will be taken by the higher authorities. That means the upper level of management. Then organizational decisions and personal decisions. Organizational में कैसे होगा कि जैसे सपोज मुझे तरफ मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ एंड व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे मेरा जो मैनेजिंग टीम है, जो मेरी टीम है, उनका मुझे हौसला अफजाई के लिए सपोज कुछ एक नया इंसेंटिव मुझे स्टार्ट करना है. तो आई कैन स्टार्ट इट, आई कैन डिस्कस एंड आई विल स्टार्ट इट कि ओके
इस तरह से, या फिर जिसे मुझे एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करना है या रीअलोकेट करना है कोई वर्क, इसको ए टास्क देना है, बी को सी टास्क देना है. सो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस विथ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. मतलब जैसी कंपनी की पॉलिसी होगी वो हिसाब से ही मुझे डिसीजंस लेना है, बट आई कैन टेक देम एट माई लेवल एंड दे कैन डिलीगेट देम, और फिर मैं उसको नीचे प्रॉपरली परकोलेट करता हूँ. तो वो चीज़ें हो जाएंगी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, क्योंकि वो मैं काहे के लिए ले रहा हूँ डिसीजंस, आई एम टेकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इफ माई डिपार्टमेंट विल गेट बेटर, माई ऑर्गेनाइजेशन विल गेट बेटर. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल डिसीजंस. पर्सनल मीन्स माई ओन डिसीजंस, जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है और जिसके लिए मैं किसी को काउंटेबल नहीं हूँ, जिसके लिए मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ, मुझे किसी को उसको जवाब नहीं देना है. दिस आर फॉर माई ओन. सो दैट काइंड ऑफ डिसीजंस. Examples you can see, if I have to leave my job, so I have to decide at my level to whom I have to answer, to myself. कि मुझे नहीं करना है, मैंने छोड़ दिया, that is leave it. अगर जॉब छोड़ने की बात है तो I'll tell you one thing, it generally happens that majority of the Vidarbhians leave the job in their very first 6 months to 12 months period, because they are not tuned to a corporate culture. थोड़ा सा फर्क पडता. तो फर्क कैसे पडता की आपल्याला कसं जास्त ऐकण्याची सवय नसते, है ना. तो ये चीज़ का बहुत जगह ये होता कि हमारी ठसा ना जाती बीच में, की नाही असं कसं म्हणू शकते तो, बिल्कुल नाही, अरे ऐकून नाही घेत कोणाची आपण. तो ये जो ॲटिट्यूड होता ना, इट इज़ राइट और रॉन्ग, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट देर इज़ वन थिंग. तो इसीलिए कैसा है कि ये जो डिसीजंस हो गए ये पर्सनल डिसीजंस, तो हमको ये भी समझना पड़ता कि पर्सनल डिसीजंस भी जब हम लेते तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होना चाहिए. एंड देन अगेन वी हैव टू बी इन टीम. जब आप लोगों का प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना, 5 लोगों के साथ आप मिलकर जॉब करोगे, कोई एक प्रोजेक्ट करोगे, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे, कोई गेम में पार्टिसिपेट करोगे जहाँ पे एक 5, 6 या 10 लोगों की टीम है, तब आपको ख्याल में आएगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मैनेज देम, कि उसको कैसे मैनेज करना पड़ता है, कितनी आपको क्वालिटीज़ चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है. 10 लोगों की एक टीम हैंडल करने में आपको कितनी प्रॉब्लम आएंगी. तो ये हिसाब से आप सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन जो इतना बड़ा होता है उसमें कितनी सारी चीज़ें होती है. सो दैट इज़ द अप्रोच. तो इसलिए डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड देर आर सर्टन क्राइटेरियाज ऑन विच यू हैव टू टेक दिस डिसीजंस. सो दैट वाज समथिंग. शिफ्टिंग टू अनदर इंडस्ट्री, दैट आर सम पर्सनल डिसीजंस. नाउ ये डिसीजंस के बाद में दिस आर जनरली द मेजर डिसीजंस, और बात की जो हमने 2 दिखे थे वो इन्हीं फॉर्म्स में कहीं ना कहीं आ जाते हैं. अब आता थियोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्यूशन थियोरी. इंट्यूशन मतलब जैसा हमको फील होता, लाइक और 6 सेंस, कि हमने कुछ खास अल्टरनेटिव नहीं देखे, लेकिन ऐसा होता कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो जॉब में मेरे को ना अच्छा ही नहीं लगता था, मेरे को लगता था कि यहाँ से मेरा फ्यूचर कहीं पे और ही है, ऐसा अंदर से एक आभास होता था. तो मैंने फिर क्या किया कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करते हुए मैंने वो नौकरी छोड़ दी, या फिर मैंने कहीं पे और जॉब ले लिया, या फिर मैंने ये रास्ता चुन लिया. इंट्यूशनल डिसीजन. एंड इट इज़ सेड दैट जनरली योर इंट्यूशंस आर राइट. Your spirit guides you in various ways, and he gives you certain signs and signals. You have to identify them. That is the theory, and on that basis, the intuition theory has been formed. You feel like it कि no, यार इंट्यूशन आ रही थी कि ये पेपर बहुत ईजी आएगा आज का, या फिर वही नहीं यार आज तो शायद काम होगा ही नहीं, पता ही नहीं, ऐसा लग रहा था. तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स दैट योर इंट्यूशन, दैट इज योर स्पिरिट दैट गाइड्स यू, यू हैव टू फॉलो द पाथ. अब ये कुछ एक अलग टॉपिक हो गया कि स्पिरिट गाइड्स यू पाथ, बट देर इज वन theory of decision कि yes there is something called as intuition, and on that base if you take the decision. Then next is classical theory. So that is very important one. Classical theory बिल्कुल classic means जो एकदम परफेक्ट होता, जैसे हम बोलते हैं एकदम क्लासिक गाड़ी है, मतलब उसमें सभी कुछ है. तो वहाँ पे आप रैशनलाइज करते. व्हाट डू मीन बाय रैशनलाइजिंग? यू आर कलेक्टिंग द फैक्ट्स, यू आर एनालाइजिंग देम, यू आर चेकिंग द सिचुएशन, देन यू आर क्रॉस क्वेश्चनिंग देम, यू आर गिविंग टर्स ओपिनियंस फॉर दिस थिंग्स. एकदम सटीक उसके लिए ऐसे बिल्कुल तुटक थोड़ा ऐसे उसके आपको आप डिफेंस कर रहे हो वो डिसीजंस के अगेंस्ट में, फेवर में, और उसके बाद में फिर जो कंक्लूजन आएगा उसके बेसिस पे आप लोग डिसीजन लोगे. दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल थियरी. डिसीजंस आर मेड रैशनली आफ्टर ए केयरफुल लुक इनटू ऑल डिसीजंस. हर किसी का आपने आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस सोचे, परिस्थितियाँ क्या, वो सब सोचा हुआ है, और उसके बाद में फिर जो डिसीजन लिया है दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन बेस्ड ऑन क्लासिकल थियरी. बिहेवियरल डिसीजन, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक रियल सिचुएशन का एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल बनाया.
अब मॉडल बनाया मतलब हमने क्लासिकल थियरी में जैसे चीज़ें कंसिडर की थी वैसे हमने यहाँ पर भी एक रियल सिचुएशन थोड़ा सा सोच के किया। जैसे सपोज आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो आपको सपोज एक प्रोडक्शन लाइन से डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करना मतलब कुछ और स्टार्ट करना है। सपोज यू आर इन अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, देन यू हैव टू एंटर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, और यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, यू हैव टू एंटर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। टाटा ये एक ऐसा नाम है कि कई सारी जगहों पर आपको दिखता है नमक हो टाटा का, टाटा नमक, टाटा टी। तो उनको टी से मैन्युफैक्चर करना था नमक में। तो फिर अब उसके बाद में उन्होंने क्या थोड़ा बहुत डिसाइड किया कि जो लोग टी लेते उनके यहाँ पे नमक भी यूज़ होता। व्हेन यू टेक डिसीजन इन दिस टाइप यू मेक अ पर्टिकुलर मॉडल आउट ऑफ इट कि ओके यू हैव सोल्ड टी, देन सेम डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेम डीलर ही विल कीप योर प्रोडक्ट विद इट यू। तो इस तरह की कुछ बेस पे जब आप डिसीजन लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन बेस्ड ऑन द बिहेवियरल थ्योरी। वहाँ पे एक इसका मॉडल रियल लाइफ टाइप सिचुएशन आप बनाते हो और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हो। तो these are the different theories of decision making: intuition theory, classical theory and behavioral theory. What happens generally in our day to day life, we take so many decisions, they are generally being programmed। जैसे हम बचपन से लेके जो आज तक बड़े हुए हमने कई सारी चीज़ें की हुई है, तो उसके लिए बहुत सारे बातें हैं कि वी डू नॉट हैव टू थिंक अपॉन दिस। वो ऑटोमेटिकली हमारे इनबिल्ट है, वो दे आर जस्ट लाइक इनबिल्ट वेरी परफेक्ट सॉफ्टवेयर, वेरी पर्टिकुलर वंस, कि वी बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन डिफरेंट सिचुएशन। उसको हमको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि डेली डिसीजन जैसे पानी पीना है, खाना खाना है, ड्रेस चेंज करना है, राइट। उसके बाद में आपको बाहर जाना है, फ़ोन करना है, कब किससे क्या बात करना है। सो दीज आर सो मैनी थिंग्स। कब स्टडीज़ करना है या फिर जब आप ड्राइव करते हो तो कैसे ड्राइव करना है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली आ जाती है। बहुत सारे सवाल जिनको जैसे आप पूछे आपके पास जवाब रेडी रहते हैं। तो बिकॉज वी आर बीइंग, यू कैन से वी आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड लाइक दैट। वो ऑलरेडी धीरे धीरे हमारे अंदर वो कैसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फिट हो गया है। तो दीज आर द वेरियस थेरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ बेसिकली डिसीजन लेने की जो एक प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, ये हमको आराम से सबको याद रह जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई यू हैव टू टेक अ डिसीजन, कि अगर सब कुछ सही सही चल रहा था तो जैसा प्रोटोकॉल था वैसा ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई। जैसे आपको बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट इमीडिएटली देना है, और यू हैव सम लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और यू हैव मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और यू डू नॉट वांट हाउ टू प्रोड्यूस ऑप्टिमिस्टिकली ऑल द थिंग्स। ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है और यू वांट टू गो फॉर ऑटोमेशन, एंड देयर कैन बी सो मैनी नंबर ऑफ थिंग्स। तो कुछ ना कुछ रेगुलर से हटकर वो इसलिए आपको अलग से डिसीजन लेना पड़ा, और इल्स वो एज इट इज़ सब कुछ प्रॉपर चल ही रहा था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले डिफाइन द प्रॉब्लम केयरफुली एंड परफेक्टली। ये बोला जाता है एनालिसिस इज द हाफ सॉल्यूशन। जैसे डायग्नोसिस, अगर आपकी बीमारी का सही से डायग्नोसिस हो गया तो आपका आधा इलाज तो वैसा ही हो गया। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा डॉक्टर मतलब क्या, वो जो आपकी बीमारी को पकड़ लेंगे, जो आपकी नब्स पकड़ लेंगे। पुराने लोग बोलते थे ना कि इसके नब्स उसके हाथ में नहीं आ रही, मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा वो पर्टिकुलर पर्सन को। सो डिफाइन द प्रॉब्लम केयरफुली एंड प्रिसाइसली, देन क्लासीफाई द ऑब्जेक्टिव्स एज पर द वेटेज एंड इम्पोर्टेंस, कि उसको हमको कहाँ तक और कितना उसका वैल्यू है, कैसे उसको डील करना है। जैसे प्रॉब्लम तो ये भी हो सकता कि मैंने शर्ट पहनी है बट ये शर्ट मुझे पसंद नहीं है, तो इस पर मैं क्या 1 घंटा सोच के इस पर प्लान करके डिसाइड करके अल्टरनेटिव सर्च करके फिर इवेल्युएट करके ये कैसा इतना सब कुछ करूँगा क्या, एक सिंपल सी चीज़ में लगेंगे नहीं इट इज़ ओके कुछ और लेता हो सकता है बैकग्राउंड में ये सब चल रहा हो, बट मैं सारी चीज़ों में नहीं जाऊँगा फॉर सच माइनर डिसीजंस। तो हमको उसका ऑब्जेक्टिव और वेटेज देखना पड़ेगा, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज़, सो दैट आइडेंटिफाई द फिजिबल अल्टरनेटिव्स। आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस है, एक्स वे से जाओ, वाई वे से जाओ, जेड वे से जाओ, एंड सो मैनी थिंग्स। सिलेक्ट द इवेल्यूएशन क्राइटेरिया। इवेल्यूएशन मतलब कि सपोज आप ये वे से जाते हो तो फिर कैसा रहेगा, ये वे आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप तीनों में से देखिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर रह सकता। फिर आप उसको एनालाइज करोगे, ओके ये मेरे को थोड़ा ओके लग रहा है। अब आप उसको डिटेल स्टडी करोगे, ओके इफ आई हैव चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन then what will be the consequences, how much I have to work, what are the different things I have to do, what will be its after effect। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल टेक्निक्स मतलब कई सारे ऐसे एनालिटिकल टूल्स है, जैसे एक फिश बोन डायग्राम है जिसके बेसिस पे आप एक फिश के जैसा डायग्राम बनाते हो, उस पर प्रॉब्लम्स लिखते चले जाते हो। यह एक ऐसा है कि आप लिखते चले जाओ इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, जैसे ये की हुआ, वो की हुआ, वो की हुआ, वो की हुआ, वो की हुआ, तो आपको फाइनल बेस के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप किस सब्जेक्ट में फेल हुए,
उसमें आपका कौन सा यूनिट वीक था, वो यूनिट में कौन सा टॉपिक वीक था, आपको वो याद क्यों नहीं आया, या फिर आपने याद किया कैसे नहीं था, आपने उसको छोड़ दिया था कि आपने उसको लाइटली लिया था क्या, वो सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए थे क्या, आरंट यू इंटरेस्टेड इन दैट, कि आपने सही से प्लान नहीं किया था। तो जितना जितना आप डिटेल में जाते चले जाओगे आपके ख्याल में आएंगे। लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा कि निग्लिजेंस, प्योर निग्लिजेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, कि बिल्कुल अपनी ही दुनिया में थे, ख्याल ही नहीं किया ये सब बातों के ऊपर। तो जब आपको ख्याल में आएगा तो ओके ठीक है, फिर आप उसके रिजल्ट्स को इवॉल्व करोगे कि ठीक है अब ये प्रोसेस हमने अप्लाई किया, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये सब चीज़ें जगह पर आना शुरू हो जाएगी, एक 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 करके, वन एंड अनदर थिंग। इन टुडेज वर्ल्ड कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम लोगों के साथ ध्यान ही बहुत तरह भटका हुआ, यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी भी है, लेकिन पहले से भी अभी तो इतना आ गया कि आपको बहुत मुश्किल कर दिया उसने जीना। पहले भी ऐसे ही था और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ परफेक्ट अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपके गोल्स नहीं सेट कर पा रहे हो, आपको लाइफ की क्लैरिटी नहीं है, या आपको पता नहीं एग्जैक्टली करना क्या है, तो समझना आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। एकाग्र चित्त से ऐसा कि आपका बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल हिट द बुल्स है। वो देखा था ना कि अगर आपको कहीं पे हिट करना है तो आपको सिर्फ आपका टारगेट ही नज़र आना चाहिए। तो ये आज के बहुत बड़ा इशू है विथ ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये बातों बातों में बात निकल गई तो थिंक ओवर इट, कभी बैठ के सोचना इस चीज़ों के बारे में कि डू यू हैव क्लियरिटी अबाउट योर लाइफ, डू यू हैव क्लियरिटी अबाउट योर गोल, डू यू हैव क्लियरिटी अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर बी, डू यू हैव क्लियरिटी अबाउट विच फील्ड यू आर गोइंग टू चूज, डू यू नो वेदर यू आर फिट फॉर एट, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ भी कभी बैठ के सोचना, देन यू विल रियलाइज कि ये डिसीजन मेकिंग जो थियरी है ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है। हर स्टेज पे आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एक घड़ी आधी में पुनी आध, यानी एक आधा और उससे भी आधा ये टाइम भी अगर आप वेस्ट करोगे तो इससे भी आपका नुकसान होना है। तो आपको पल पल डिसीजन लेना है। एंड देयर आर ऑलवेज डुअलिटी। जैसे हमारे अंदर कैसा होता है कि एक अच्छा इंसान बैठा है, एक बुरा इंसान बैठा है, तो आपको बोलेगा नहीं क्या देखता, कंप्लीट वीडियो रहने देना। दूसरा बोलेगा नहीं यार देख ले प्लीज़, थोड़ा देख ले। तो यू हैव टू विन ओवर इट। तो एक एक ऐसे ऐसे बोलते ना, थेम थेम तड़े साचे, बूंद बूंद से सागर बनता। तो ऐसे आपके छोटे छोटे डिसीजन से है ना आपका पूरा लाइफ बनता है। छोटे छोटे डिसीजन से आपका एटीट्यूड, आपकी हैबिट, वेस बहुत कुछ बदलता। देन रिस्क इन्वॉल्व, उसमें रिस्क कितना है अगर आप वो डिसीजंस लेते हो तो, एंड आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क। रिस्क के बारे में एक सिंपल है कि ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। यू शुड टेक रिस्क इन लाइफ, बट दैट डजेंट मीन कि आप 120 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, दैट इज स्टूपिडिटी, वो मूर्खता है। रिस्क आपको कहाँ पर लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क, ओके। और उसके लिए आपको पहले खुद को एनालाइज करना भी जरूरी है कि बिकॉज यू कैन कीप एनी गोल इन लाइफ। जैसे आपका गोल ये भी हो सकता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आपको हिमालय को मूव करना है, बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन अप्रोच, थोड़ा सा फिजिबल, कि वो गोल सेट करके आपको करना क्या हो। आप ऐसा करके लोगे उसको अचीव करके, वो हला भी दिया आपने हिमालय, देन व्हाट। तो इस चीज़ों के लिए जैसा आपका एक कैलकुलेशन फिक्स होता है खुद को एनालाइज करके, तो वैसे रिस्क का भी आपको कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कि अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप उसमें से 2 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप 10 के 10 अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो देन दैट विल बी ऑफ नो यूज़। देन फाइनल डिसीजन, ये सब अल्टरनेटिव्स पर से हमने एक फाइनल डिसीजन सोच लिया कि ओके, और फिर उसको इफेक्टिव एक्शन में इम्प्रूव किया कि ठीक है वी हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग टू डू दिस, और जो भी हमने बनाया लाइन ऑफ एक्शन कि ऐसा ऐसा हम लोग करने पाएंगे, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद में धीरे धीरे हम उसको फीडबैक उसका देखते रहे, एंड दैट इज हाउ द डिसीजन मेकिंग इज डन। अब इसके आगे की प्रोसेस ये होते हैं, इफ ऑल द थिंग्स गोज वेल एज पर योर thought, as per what you have required, as per what you think you are going to get out of it, if all goes well then their decision was the right one, or else then you have to find again कि what we missed in our decision। तो फिर से ये कहानी शुरू होती फिर कि ठीक है क्या प्रॉब्लम हुआ था, डिसीजन लेने के टाइम गलत किया होता, फिर से पूरा आइडेंटिफाई करो, फिर से आगे बढ़ो, टिल यू रीच टू अ राइट थिंग, टिल यू रीच टू अ राइट वे, जब तक आप सही तरीके और सही जगह पर पहुंच नहीं जाते। यहाँ पे इसको एक इसमें दिखा जा सकते, देयर आर सर्टन स्टेप्स। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, स्टेप 1। स्टेप 2, ट्राई टू अवॉइड इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब हम उसको ये बोलते ना कि एक थोड़ा सा एनालिसिस का पार्ट है, वैसे कि देखो उसको तुम अवॉइड कर सकते कि कुछ और लगा के, कुछ तड़जोड़ करके। देन फाइंड द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएट एंड चूज एन अल्टरनेटिव, take a decision, plan for its implementation and re-evaluate the decision considering all possible consequences। आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद में उसको एनालाइज किया,
तो अवॉइड, यहाँ पे अवॉइड लिखा है बट यू कैन राइट देयर एनालिसिस, देन फाइंड द अल्टरनेटिव्स, फिर इवेल्युएट किया, अल्टरनेटिव को चूज़ किया, डिसाइड किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर रीएवेल्यूएट किया। अब जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेप्स है तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, जिसको हम फ्लो चार्ट टाइप बोलते हैं। तो यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ लाइक दिस, इससे थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। व्हाट हैपन्स व्हेन द वैल्यूअर विल सी दिस, वो एक एक पार्ट पढ़ते बैठेंगे, इट इज़ नॉट गारंटेड दैट ही इज गोइंग टू रीच ईच एंड एवरी पॉइंट दैट टू वेरी क्लियरली, वेरी क्लोजली, दो इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड वैल्यूअर एंड दे मस्ट डू दैट, बट दैट जनरली may happen or may not happen. So what you have to do, you have to present in such a way that with the very first sight he should get all the things कि okay, जैसे उसने यहाँ पर देखा उसको सारी चीज़ें एकदम से यहाँ पर मिल जाए. So that is the part. So that is what we have learned today. We have learned what do you mean by decision making, what are the steps in decision making, and what are the different types of decisions. So as such we have seen there are different types of decisions like programmed decisions and non-programmed decisions. Second was routine decisions and strategic decisions. Third one was organizational decisions and personal decisions. The major decisions and minor decisions, and routine decisions and strategic decisions, organizational and personal decisions. And then we have seen the different types of decisions theory, the intuition theory, the classical theory, the behavioral theory, and so on. And then what we have seen what are the steps in decision making. So this is how decision has been done. So this is all about the decision. Now you have to take the decision about this thing. You do, whether you should watch the videos regularly, whether you should fill the MCQs after reading the questions, and that whether you should attend द गूगल मीट्स रेगुलरली. और ये सब आपको फिर डिसाइड करना है, सारे अल्टरनेटिव्स इवेल्युएट करना है और फिर आपको एक फाइनल कंक्लूजन पे आना है. और जो मेरे ख्याल से वो यही होगा कि येस, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स एज इट हैज़ बीन प्लान्ड. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू क्लास, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद.